हेलो स्टूडेंट्स, आज हम PU2 मैथमेटिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 में एग्जाम्पल 1 से लेकर हम 25 तक पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल 26 से स्टार्ट हम करेंगे। एग्जाम्पल 26 पार्ट सी में सेकंड क्वेश्चन है, if R1 and R2 are equivalence relations in a set A, show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation. ये relation equivalence कब होता है? If it is reflexive, symmetric and transitive. तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होंगे तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो ऑलरेडी दिया गया है कि दिस इक्वेशन शो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। सो इसलिए हम क्या करना है, सब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ये प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू R1 एंड R2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हियर रिलेशन क्या दिया गया है, R1 इंटरसेक्शन आल्सो इज आल्सो इक्विवेलेंस। So R1 intersection R2 belongs to R2 belongs to reflexive. A belongs to R1 intersection R2. Therefore R1 intersection R2 is reflexive. Similarly symmetric. AB belongs to R1 intersection R2. Then BA also belongs to R1 intersection R2. By seeing the intersection property only we can say. Similarly we have to write R1 intersection R2 belongs to R and R2 intersection R3 belongs to R implies AB belongs to R1 intersection R2 and BC belongs to R1 intersection R2 implies AC also belongs to R1 intersection R2. Therefore R1 intersection R2 is transitive. Therefore R1 intersection R2 is equivalence relation. Come to the next question, 27 question. Evaluate tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1 by 2. अब हम इसे tan इनवर्स क्वेश्चन LHS लेंगे। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 by 2 इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos 2 pi by 6. tan इनवर्स that is sin इनवर्स 1 by 2 equal to pi by 6, cos pi by 3 is equal to root 3 by 2, tan इनवर्स root 3 is pi by 3. Therefore tan इनवर्स 2 into root 3 by 2, tan इनवर्स root 3 value is pi by 3. Next question, 28 question. Express the matrix A is equal to, एलिमेंट्स दिए गए हैं, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. मैट्रिक्स A दिया गया है, फर्स्ट हम उसका A डैश लिखेंगे। A डैश का मतलब है चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। A एंड A डैश लिखा गया है। नेक्स्ट वी हैव टू राइट A इज इक्वल टू next we have to write A equal to 1 by 2 A plus A dash. P is equal to 1 by 2 A plus A dash. 1 by 2 A और A dash को प्लस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 by 2 उसे डिवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट Q इज इक्वल टू 1 by 2 A माइनस A डैश करेंगे। A माइनस A डैश करके इसे 2 से डिवाइड करेंगे। देन A इज इक्वल टू P प्लस Q। वही मैट्रिक्स हमें P प्लस Q करने पर वही सेम मैट्रिक्स हमें आ जाएगी। We have expressed the matrix A as a sum of symmetric and skew symmetric. इसके लिए पहले P equal to 1 by 2 A plus A dash करना होगा, फिर Q equal to 1 by 2 A minus A dash करना होगा, फिर A equal to P plus Q. Next question, 29 question. If A and B are symmetric matrices of same order, then show that AB is symmetric if and only if A and B are commute, that is AB equal to BA. Let A and B are symmetric matrices of same order. We have A dash equal to A and B dash equal to B. Let AB is symmetric, that is AB dash. Symmetric का मतलब क्या होता है, AB dash equal to AB. A dash B dash equal to AB, that is AB equal to BA equal to A B. Therefore A and B are commuted. Commutative property holds good here. Conversely, let A and B are commute, AB equal to BA, we have AB dash equal to B dash A dash, AB bracket dash equal to BA, AB dash equal to AB, therefore AB is symmetric. Next question, question number 30. Find dy by dx if y equal to log x to the power cos x.
अगर यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा तो हमें टेक लॉग बोथ साइड करना होगा. टेकिंग लॉग बोथ साइड, लेट y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर cos x. टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू cos x, और ये पावर cos x नीचे आ जाएगा, cos x इंटू log ऑफ log x. नाउ डिफ्रेंशिएट 1 by y dy by dx इक्वल टू 1 by y dy by dx इक्वल टू, यहाँ पर u इंटू वी रूल करना होगा, cos x इंटू log ऑफ cos x. फर्स्ट u ऐसे ही रखना होगा, cos x ऐसे ही रखो. डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इज 1 by x इंटू log x इज 1 by x, प्लस log x ऐसे ही रखो. डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x. देयरफॉर dy by dx इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का y अब न्यूमरेटर में आएगा यहाँ पर. सो y इंटू cos x by log x प्लस माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x. यहाँ पुट y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू log ऑफ cos x इंटू ब्रैकेट cos x by x log x माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू रूट ऑफ a raised to sin inverse t and y equal to root of a raised to cos inverse t, then prove that dy by dx equal to minus y by x. Multiply given x and y, we get, फर्स्ट ये मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू वाई करने पर हमें एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी. साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू, वैल्यू इसकी π/2 होती है, ए रेस टू π/2 होगा. एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए रेस टू π/2, ये पूरा कांस्टेंट है. अब डिफ्रेंशिएशन करो, x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन, x ऐसे ही रखो, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई ऐसे ही रखो, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और ये पूरा रूट ऑफ ए रेस टू π/2 कांस्टेंट होगा, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा. सो x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये प्लस वाई टेक दिस साइड, राइट हैंड साइड, इट विल बिकम माइनस वाई. सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. ये डिफ्रेंशिएशन के बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट यू हैव टू डिफ्रेंशिएट एंड पुट द वैल्यू. इफ y इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d square y by dx square plus y equal to 0. Let y is equal to 5 cos x minus 3 sin x. Differentiate with respect to x. y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy by dx इक्वल टू 5 ऐसे ही रखो, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस 3 ऐसे ही रखो, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x. एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, हमें और एक बार 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है. अगेन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 कॉन्स्टेंट ऐसे ही रखो, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस 3 ऐसे ही रखो, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, वो माइनस ये माइनस मिलकर ये प्लस होगी. अब माइनस साइन कॉमन लो, माइनस साइन इंटू ब्रैकेट 5 cos x माइनस 3 sin x. ये अगेन y की वैल्यू होगी, 5 cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू y. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई. सो वी गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0. दैट वी हैव टू प्रूव. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग x, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब लॉग x. यहाँ पर हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि एक्स क्यूब इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड log x इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x. इफ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इज u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स. सो एक्स क्यूब ऐसे ही रखो, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x ऐसे ही रखो, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर. एक्स रेस टू एन फार्मूला हमें यूज़ करना होगा. एक्स रेस टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एक एक्स कट होगा एक्स क्यूब के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स. ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें आएगी. फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा प्लस 3 कांस्टेंट बाहर रखो, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का अगेन u इंटू वी रूल, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड लॉग एक्स इज आल्सो फंक्शन ऑफ x. डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी रूल करो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखो, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 प्लस लॉग एक्स ऐसे ही रखो,
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3x, एक x यहाँ पर कट होगा, 3x प्लस 6x log x. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 6x इंटू log x. Next question, question number 34. Find the point on the curve x square by 9 plus x square by 16 equal to 1 at which the tangents are parallel to x axis, parallel to y axis. So यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है. यहाँ पर ये इक्वेशन का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है. एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा, कांस्टेंट ऐसे ही रखो, 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y dy बाई डी एक्स होगा, डिवाइडेड बाय 16 ऐसे ही रखो. सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस 16x बाई 9y. नेक्स्ट द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी. नेक्स्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, इसलिए माइनस 16x बाई 9y इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इक्वल टू 0. इफ x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, वी गेट x की वैल्यू इस इक्वेशन में डालो, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 4. फर्स्ट इक्वेशन में डालो, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 है, उसमें x की वैल्यू 0 डालो तो हमें y इक्वल टू प्लस और माइनस 4 मिलेगा. देयरफॉर द पॉइंट ऑन द कर्व इज 0 प्लस और माइनस 4. नेक्स्ट द टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस, देन स्लोप इज नॉट डिफाइंड, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 0. देन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. इफ y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट x इक्वल टू प्लस और माइनस 3. देयरफॉर द पॉइंट ऑन द कर्व इज 0 प्लस और माइनस 3 0 होगा. तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 में पॉइंट ऑन द कर्व विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस के पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम. द टू पॉजिटिव नंबर्स भी x एंड x माइनस 15, क्योंकि सम दोनों का 15 होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 15 होगा, इसलिए फर्स्ट नंबर x है तो y क्या होगा, 15 माइनस x होगा. s ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज हुज स्क्वायर इज मिनिमम, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. s ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 15 माइनस एक्स है, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे. एस डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक्स. एस डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 30 which is s double dash of x equal to 4 which is greater than 0. Therefore sum of two square is whose square is minimum for the function maximum or minimum s dash of x equal to 0, 4x minus 30 equal to 0, 4x equal to 30, x equal to 15 by 2. So the required numbers are 15 by 2 and 15 by 2. The two positive numbers are 15 by 2 and 15 by 2 whose sum is 15 and whose square is minimum. Next question, question number 36. Evaluate integration sin 3x into cos 4x dx. यहाँ पर हमें एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, cos a इंटू साइन बी. cos a sin b इक्वल टू 1 बाई 2 साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी. सो इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू cos x इक्वल टू, ये फार्मूला हमें यहाँ यूज़ करना होगा. 4x प्लस 3x 7x होगा, 4x माइनस 3x 1x होगा. सो साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी साइन 7x माइनस साइन x, दैट इज़, अब हम साइन 7x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर cos 7x बाय 7 होगा और साइन x का इंटीग्रेशन cos x होगा, इसलिए हमें आंसर मिलेगा माइनस 1 बाई 14 cos 7x प्लस 1 बाई 2 cos x प्लस c. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. इवेल्युएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स. यहाँ पर हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स. यहाँ पर ई रेस टू एक्स है,
इसे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स में चेंज करना होगा, उस फॉर्म में बनाना होगा. सो डिवाइड एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर विथ एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वन को हमें स्प्लिट करके लिखेंगे, -1 + 2 लिखेंगे, एक एक्स स्क्वायर -1 के साथ टर्म करेंगे और एक 2/x + 1 करेंगे. फिर e⁻x, ये एफ ऑफ एक्स एक x + 1 इसके साथ कट होगा, x² - 1 x - 1 x + 1 के साथ एक रिमूव होगा. फिर x - 1/x + 1 + 2 डिवाइडेड बाय x + 1. सो e⁻x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स फॉर्म में होगा. इसका आंसर डायरेक्ट e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स, इसलिए इसका आंसर e⁻x x - 1/x + 1 होगा. नेक्स्ट इंटीग्रेट x इंटू लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा. इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू यू डैश. सो फर्स्ट हमें इंटीग्रेशन ऑफ u ऐसे ही रखना होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू यू डैश. सो लॉग एक्स u ऐसे ही रखेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ v इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड. सो u इंटू वी रूल अप्लाई करने पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट कम टू द पार्ट डी. यहाँ पर 5 मार्क क्वेश्चन होंगे. आंसर यानी 6 क्वेश्चन करना होगा. आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, check the injectivity and surjectivity of the function f from R to R defined by f of x equal to 3 minus 4x. Is it a bijective function? Bijective means both 1 1 and onto. So function क्या है हमारा, f of x equal to 3 minus x. f is a function from R to R defined by f of x equal to 3 minus 4x. पहले हम 1 1 प्रूव करेंगे. 1 1 प्रूव करने के लिए टेक f of x1 इक्वल टू f of x2, देन वी हैव टू प्रूव x1 इक्वल टू x2. f of x1 क्या होगा, यहाँ पर f of x इक्वल टू 3 minus 4x है. f of x1 क्या होगा, 3 minus 4x1 होगा. f of x2 क्या होगा, 3 minus 4x2 होगा. 3 3 कैंसिल करो बोथ साइड. -4x1 इक्वल टू -4x2, x1 इक्वल टू -4 गेट कैंसल्स, x1 इक्वल टू x2. देयरफॉर f इज़ 1 1, देयरफॉर f इज़ इंजेक्टिव. ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें let y belongs to R, there exists x belongs to R such that f of x equal to y. So f of x क्या है यहाँ पर, 3 minus 4x equal to y लो, इसमें से x की वैल्यू निकालो, x equal to y minus 3 divided by 4. f of x equal to 3 minus 4x. So f of y minus 3 divided by -4 equal to 3 minus 4 into y minus 3 by -4 equal to y. Therefore f is onto. Therefore f is surjective because it is both 1 1 and onto. Next 40 question. If f is a function from R to R defined by f of x equal to 1 plus x square, show that f is neither 1 1 nor onto. f of x 1 plus x square दिया गया है. We have to show it is neither 1 1 nor onto. f of x1 equal to f of x2, 1 plus x1 square equal to 1 plus x2 square. 1 1 both side cancel हुआ. x1 square equal to x2 square. x1 square equal to x2 square है तो x1 is not equal to x2 because यहाँ पर रियल नंबर दिया गया है. अगर नेचुरल नंबर होता तो यहाँ पर ये ट्रू होता बिकॉज नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं. ये रियल नंबर है, रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी नेगेटिव नंबर ही पॉजिटिव नंबर ही होगा. इसलिए x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2. x1 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. इसलिए x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 बिकॉज इट इज़ रियल नंबर. देयरफॉर f इज़ 1 1. f इज़ नॉट 1 1. f of 2 equal to 1 plus 2 square. f of minus 2 is 5. Here f of 2 equal to f of minus 2, but 2 is not equal to minus 2. Here दो इसके फंक्शन से रिलेटेड होगा 2 and -2, इसलिए it is not 1 1.
लेट y इज एनी एलिमेंट इन R, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है 1+x² है, तो x की वैल्यू रूट ऑफ y माइनस 1, हियर it does not belongs to R, it is not a real number. If y equal to minus 2 belongs to R, there exists x equal to minus root 3 which does not belongs to real number, ये real number नहीं है, therefore f is not onto, therefore f is neither 1 1 nor onto. ये हम प्रूव कर चुके हैं एग्जाम्पल 40. नेक्स्ट कम मैट्रिक्स क्वेश्चन. इफ ए इक्वल टू 2 3 4 minus 5, b equal to 3 8 11 21, c equal to 7 13 5 9, evaluate ba ca and b plus c and verify b plus c into a equal to ab plus ca. फर्स्ट हमें b plus c सॉल्व करना होगा, फिर b plus c के साथ a को मैट्रिक्स a को इनटू करना होगा. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करना होगा. बी ए कैलकुलेट करना होगा, सी ए कैलकुलेट करना होगा. नेक्स्ट बी ए प्लस सी ए, बी ए प्लस सी ए, फिर वी हैव टू प्रूव बी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू बी ए प्लस सी ए, वी हैव प्रूव्ड. इस तरह से हमें बी प्लस सी इंटू ए, बी ए सी ए ये सब कैलकुलेट करके हमें प्रूव करना है कि बी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू बी ए प्लस सी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, ये भी मैट्रिसेस से लिया गया है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से. इफ ए इक्वल टू 1 minus 4 3, बी इक्वल टू -1 2 1, देन वेरीफाई दैट ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश. ये डैश का मतलब होता है चेंजिंग रो इंटू कॉलम. सो ये ए एक कॉलम है, ये ए डैश क्या होगा, एक रो बनेगा 1 minus 1 4, बी एक रो है, बी डैश एक कॉलम बनेगा. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए बी, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करो, ए बी मैट्रिक्स ए 1 minus 4 3 है, मैट्रिक्स बी -1 2 1 है, इसे मल्टीप्लाई करना होगा 1 इंटू -1, फिर 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1 फर्स्ट रो में होगा, फिर सेकेंड रो में -4 इंटू -1, -4 इंटू 2, -4 इंटू 1 सेकेंड रो. थर्ड रो में -3 इंटू 1, 3 इंटू -1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 1. ये हमें मैट्रिक्स ए बी मिलेगी. ए बी डैश करने कैलकुलेट करना हो तो हमें रो को कॉलम में चेंज करना होगा. ए बी डैश इक्वल टू पूरे रो को कॉलम बनाना होगा. फिर नाउ कैलकुलेट बी डैश इंटू ए डैश. बी डैश क्या है 1 -1 2 1 1 -4 3, इसे भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा. बी डैश इंटू ए डैश -1 इंटू 1, नेक्स्ट -1 इंटू -4, -1 इंटू 3, नेक्स्ट 2 इंटू 1, 2 इंटू -4, 2 इंटू 3. थर्ड रो में 1 इंटू 1, 1 इंटू -4, 1 इंटू 3 करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी. और हमें ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं, ए बी ब्रैकेट डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड. ये मैट्रिक्स मेथड के 3 इक्वेशन दिए गए हैं. द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी. नेक्स्ट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखो, एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड होगी, बी इक्वल टू 1 1 2 होगा. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे सॉल्व करते हैं, 1 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 3 -3 इंटू 2, -1 और माइनस मिलकर +1 होगा. 1 इंटू ब्रैकेट 0 इंटू 4 -3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट 0 इंटू -2 -2 इंटू 3. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर it is non-singular matrix, then only inverse exist. if determinant of equal to 0, the inverse will not exist. ये स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द इनवर्स कैन बी एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर. अब हमें कोफैक्टर निकालना है. कोफैक्टर ऑफ ए
अब कोफैक्टर ऑफ 1 निकालना है तो हमें 1 के रो और कॉलम को छोड़कर बीच का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। कोफैक्टर, फिर उसका डैश एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर हमें इस इक्वेशन फॉर्म में लिखना होगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स मीन्स एक्स वाई जेड, ए इनवर्स ये मैट्रिक्स और बी, इसे मल्टीप्लाई करना होगा, ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स के प्लेस पर 0 है, वाई इक्वल टू 5 एंड जेड इक्वल टू 3। नेक्स्ट इफ ए इक्वल टू 3725 एंड बी इक्वल टू 6879 वेरीफाई ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये थ्योरम हमें यहाँ वेरीफाई करना होगा इस एग्जाम्पल पर। ए इक्वल टू ए इनवर्स का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगी 3 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 2, 3 5 15, 15 माइनस 14, यहाँ पर 1 होगी वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 होगी, एडजॉइंट 3 का एडजॉइंट 5 होगा, 7 का वो रो और कॉलम को छोड़कर हम लिखेंगे, 3 का रो और 3 का कॉलम छोड़कर हमें 5 मिलेगा, 7 का कॉलम 7 का रो छोड़कर 2 मिलेगा। इसी तरह हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, फिर ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह बी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, बी इक्वल टू 6879, बी इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है 6 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 8, हमें 54 माइनस 56 माइनस 2 मिलेगी, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 6 का एडजॉइंट 9 होगा, 6 का कोफैक्टर 9 होगा, 8 का कोफैक्टर 7 होगा, 9 का कोफैक्टर 6 होगा। कोफैक्टर का हमें ट्रांसपोज लिखना है। फिर उसके बाद बी इनवर्स के बाद हमें वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ए बी कैलकुलेट करो, ए बी इक्वल टू ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ए बी की वैल्यू रो इंटू कॉलम से, ए बी इक्वल टू वैल्यू मिलेगी। फिर ए बी इन्वर्स, इसका इन्वर्स कैलकुलेट करो। ए बी का इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैलकुलेट करना होगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी मीन्स को फैक्टर ब्रैकेट डैश, को फैक्टर को रो इंटू कॉलम में चेंज करना होगा। फिर नेक्स्ट बी इन्वर्स ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करना होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स मिलेगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में ए बी इन्वर्स की वैल्यू जो है वही सेम वैल्यू बी इन्वर्स ए इन्वर्स में है। So we have proved that AB inverse equal to B inverse A inverse. Next question number 45. If y equal to tan inverse x bracket square, show that x square plus 1 bracket square y2 plus 2x into bracket x square plus 1 into y1 is equal to 2. Let y is equal to tan inverse x bracket square, y1 क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन tan इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर का 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ क्योंकि u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अगेन डिफ्रेंशिएट बाय u इंटू वी रूल। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y1 इज y2 प्लस y1 ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू 2 ऐसे ही रखो। tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस y1 इंटू 2x। तो वी हैव प्रूव्ड द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन, if x equal to a cos t plus t sin t and y equal to a sin t minus t cos t, find d square y by dx square। x equal to a cos t plus t sin t, इसका dx विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंसिएशन करो, a को ऐसे ही रखो, cos t का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin t, यहाँ पर t sin t है, इसे u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा। t ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin t cos t प्लस sin t ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ t 1 होगा। नेक्स्ट y इक्वल टू गिवन क्या है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, डिवाइड dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डिवाइड करने पर हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू
क्यूब टी डिवाइडेड बाय 80 मिलेगी। नेक्स्ट, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इवेल्युएट 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये थ्योरम है, स्टैंडर्ड थ्योरम है, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2a मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करो। फिर नेक्स्ट x प्लस ए माइनस ए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो 2a के प्लेस पर। 2a इक्वल टू एक्स प्लस ए माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इक्वेशन को स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। फिर डिवाइड बोथ साइड करो, डिवाइड एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। एक्स प्लस ए विल गेट कैंसल, यहाँ पर एक्स माइनस ए कैंसिल होगा तो 1 बाई एक्स माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए मिलेगा। सो इंटीग्रेशन बहुत इजी है। लॉग ऑफ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस ए। माइनस साइन है इसलिए डिवाइड करो लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। ये थ्योरम है, स्टैंडर्ड थ्योरम, आपने बहुत बार प्रैक्टिस भी की होगी। इसी के बेसिस पर हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखो, ए के प्लेस पर 4 होगा, 4 स्क्वायर 16 होगा। सो डायरेक्ट फार्मूले में इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू डाल दो, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 लॉग ऑफ एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4, 1 बाई 8 log of x minus 4 by x plus 4. Next, find the integral 1 divided by a square minus x square with respect to x and hence evaluate integration of 1 by 2x minus x square dx. इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2a मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करो। फिर 2a को स्प्लिट करके a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स लिखो। 1 बाई 2a ए माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, यहाँ पर डिवाइड होगा तो आपको बचेगा 1 बाई ए प्लस एक्स प्लस 1 बाई ए माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ ए प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस एक्स के लिए ये बीच में माइनस साइन आएगी। फिर बाय टेकिंग द लॉगरिथम प्रॉपर्टी लॉग ऑफ एम बाई एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग ऑफ एम बाई एन के हिसाब से इसका आंसर होगा 1 बाई 2a log of a plus x divided by a minus x. So to make perfect a square here, 1 by 2 x minus x square dx equal to 1 divided by 1 minus x square minus 2x plus 1। यहाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट प्लस 1 एंड माइनस 1 किए हैं। यह हिसाब से हमें इस इक्वेशन के बराबर हमें एक्स स्क्वायर बनाना है। तो एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर बनाकर इस एग्जाम्पल को हमें इस फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है पार्ट ई क्वेश्चन। पार्ट ई क्वेश्चन में 49 क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और बी क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। सो इसमें अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए and 3 hours of work on machine B. To produce a package of nuts, it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B. To produce package of bolts, he earns a profit of rupees 17.50 per package on nuts and rupees 7 per package on bolt. How many packages each should produce each day to maximize his property? So you have to find the maximum value. मशीन ए मशीन बी एक तरफ लिखो, नट्स बोल्ट एक तरफ लिखो। मशीन ए 1 3, मशीन बी 3 1, लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हमारा z क्या होगा 17.5x प्लस 7y। इक्वेशंस क्या होंगे x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12, 3x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 12। तो पुट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू मिलेगी, पुट y इक्वल टू 0 x की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पर इक्वेशन लेस देन और इक्वल टू है, बोथ ओरिजिन की तरफ ही जाएंगे। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, आपको फाइंड आउट करना है ग्राफ में। 0 0 0 4 3 3 4 0, इस पर आपको मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 73.50।
सो इस तरह से आपको ये ग्राफ सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करके उसमें जेड में वैल्यू डाल के आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। पार्ट बी में आपको लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 if x is less than or equal to 5, 3x minus 5 if x is greater than 5 is continuous at x equal to x equal to 5. So यहाँ पर ऑलरेडी द फंक्शन इज कंटिन्यूस है, इसलिए LHS लिमिट LHL लिमिट इक्वल टू RHL लिमिट k प्लस 1 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, k प्लस 1 इक्वल टू 10, देयरफॉर k इक्वल टू प्लस 1 इधर लेकर जाओ, 10 माइनस 1 9 होगा, 5k इक्वल टू 9, k इक्वल टू 9/5. 50 क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 600x प्लस 400y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू 0 डालो y की वैल्यू मिलेगी, y इक्वल टू 0 डालो x की वैल्यू मिलेगी। फिर इसी तरह दूसरे इक्वेशन में भी ऐसे ही करना होगा। फिर आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ में लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12 दिया गया है, तो ये ओरिजिन की तरफ ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड आउट करना है। तो ये डिसीजन बॉक्स में रखो कॉर्नर पॉइंट्स, फिर इस पॉइंट्स की वैल्यू z में डालो, आपको z के वैल्यूज़ मिलेंगे। इसमें मिनिमम वैल्यू 4000 है, मैक्सिमम वैल्यू 4000 एट पॉइंट 4,4 एंड मिनिमम वैल्यू इज 1600 एट 0,4. बी क्वेश्चन है, if a equal to 3, 2, 1, 1, then find the numbers a and b such that a square plus a plus bi equal to 0. Then find the inverse of a using this question where I is identity matrix of order 2. फर्स्ट हमें a स्क्वायर कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस a इस इक्वेशन में लिखो a स्क्वायर प्लस a इंटू मैट्रिक्स A प्लस B इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स। फिर ये तीनों मैट्रिक्स को ऐड करो, फिर इक्वेशन सॉल्व करो, A एंड B के इक्वेशन सॉल्व करो। A एंड B सॉल्व करने पर हमें A की वैल्यू -4 मिलेगी, B की वैल्यू 1 मिलेगी। सो इसका प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स बोथ साइड करो, इस पर हमें A इनवर्स की वैल्यू मिलेगी। हर एक नंबर को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, A इनवर्स इंटू A स्क्वायर -4 इंटू A इनवर्स, सो A इनवर्स गेट कैंसल। A की A इनवर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, A इनवर्स इक्वल टू 4i माइनस A इनवर्स इक्वल टू 4i माइनस A करने पर हमें A इनवर्स मिल जाएगा।